अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। साद अभी आ जाते हैं। साद, आप शुरू कर सकते हैं। Yes, sir. जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। The presentation is in visual mode. आपकी प्रेजेंटेशन अभी शेयर नहीं हुई, आप शेयर। So now the presentation is shared. जी, आप स्लाइड मोड में कर दीजिए। स्लाइड मोड में कर दीजिए। Yes, sir. जी, आप स्टार्ट कर दीजिए। Now the background in 1981 to 1984, David Chomsky began addressing the problem of scaling up Ethernet networks. At that time, the maximum speed is 10 megabits per second. However, Ethernet was a broadcast network and there is no good way of connecting multiple Ethernet networks together. This limited the total bandwidth of an Ethernet network to 10 megabits per second and maximum distance between nodes to few hundred feet. It was possible to use IP routing to connect multiple Ethernet networks together. It was expensive and relatively slow. So Sinosky started looking for alternatives required less processing per packet. He independently reinvented transparent bridging technique used in modern Ethernet switches, which in turn requires spanning tree configuration. This ensures that there is only one path from source to node to any destination on the network, causes centrally located switches to become bottlenecks, limiting scalability as more networks are interconnected. To rectify this problem, Sinosky invented VLANs by adding a tag to each Ethernet frame. These tags could be thought as colors red, green, or blue. In this scheme, each switch could be assigned to handle frames of a single color and ignore the rest. Network could be interconnected with three spanning trees, one for each color by sending mix of different frame colors. The aggregate bandwidth could be improved. This is referred as multi-tree bridge. This color is what is now known as Ethernet frame as IEEE 802.1q header or VLAN tag. In 1998, Ethernet VLANs were described in first edition of IEEE 802.1q 1998 standard. This was extended with IEEE 802.1 AD to allow nested VLAN tags in service of providing bridging. This mechanism was improved with IEEE 802.1 AH 2008. Now, the network virtualization is when physical networks are combined into a virtual network based on software instead of hardware. All the physical parts of the network, such as switches and routers, are pooled and their resources can be allocated as needed to any user or device. Management system. A common type of virtual network is a virtual local area network or VLAN. VLAN combines several network devices into one group as if they were a LAN, even they are not in local proximity to each other. VLAN is any broadcast domain that is partitioned and isolated in a computer network at the data link layer. VLAN provide mechanisms for making logical groups of end devices, though they are on different networks. Implementing VLAN reduces the security risk significantly. This is done by configuring a separate VLAN for only the host with the sensitive information. VLAN offers flexible network models which groups different users based on their departments rather than just physical location on that network.
Changing users and hosts on a VLAN is easy. All it needs is a new port level configuration. If a user wants to move from one VLAN to another, a new port needs to be configured on the desired VLAN. Network virtualization gives performance, formation of virtual groups, simplified administration, reduced cost, and security. Historical developments. Sininsky invented VLANs by adding a tag to each Ethernet frame. He referred this as a multi-tree bridge. Ethernet frame known as the IEEE 802.1q header. In 1998, Ethernet VLAN was described as IEEE 802.1q 1998 standard. This was standard with IEEE 802.1ad to allow nested VLAN tags in service of providing bridging. This mechanism was improved with IEEE 802.1ah 2008. Now the conclusion is network of the future will be completely virtualized on physical infrastructure, as essentially data centers of varying sizes. Very small data centers will be located on the periphery of the network near to the user. Overall, this new generation of technologies is based on the cloud and on virtualization and also the NFV and cloud of security. These are the references. साथ मेरे दोस्त जी सर। हैं, एक तो आपने ये ब्लैक कलर के ऊपर जो बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसकी कोई खास वजह है? नहीं सर, इसकी वजह नहीं थी। मुझे मैंने जो यही जो है इस्तेमाल किया है, इसी को अगर आप कहेंगे तो मैं चेंज कर दूंगा सर। असल में अगर प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है ना फाइलिंग में, तो बड़े मसले मसाइल, तो आप इसकी जो बैकग्राउंड ना वाइट कर दें और जो है ना इसकी जो टेक्स्ट है ना वो आप ब्लैक या जो भी आप मुनासिब समझें, लेकिन ये प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये हम सब आएंगे वहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल में, और अगर उन्होंने प्रिंट की तो वो फिर सब ब्लैक होगा। सही। तो आपके लिए ये होगा कि एक तो प्रेजेंटेशन की आप जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर लें, और वाइट आमतौर पे जो एकेडमिक्स में प्रेजेंटेशन इस्तेमाल होती है ना वो हम सिंपल ही रखते हैं और फोकस रखते हैं काम के ऊपर ना कि क्या काम किया है और उसके हिसाब से। अच्छा, एक दो सवाल मेरे हैं, लेकिन उससे पहले रेफरेंसेस चूंकि सामने आ गए हैं, तो रेफरेंसेस में एक दो चीजें मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। जी सर। देखिए, पहले तो IEEE स्टाइल यूज करें आप रेफरेंसेस में, और दूसरी चीज ये कि जो आप रेफरेंस यूज करें ना किसी फेमस और ऑथेंटिक वेबसाइट से होना चाहिए। अब जैसे विकिपीडिया का रेफरेंस है, तो ये आमतौर पे ये रेफरेंस जो है ना ये ऑथेंटिक और वो नहीं होते, लर्निंग के लिए तो ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ से कुछ रेफरेंस करते हैं तो हो सकता है कोई उसको एडिट कर दे ना। जी सर। क्योंकि विकिपीडिया को तो कोई भी एडिट कर सकता है, ये चीज ये थोड़ा सा जरा ख्याल रखिए अपनी प्रेजेंटेशन में। और रेफरेंसेस जो है वो अब ये मालूम नहीं पड़ रहा कि जो आपने रेफरेंस दिया है इसमें टाइटल क्या है और इसका राइटर कौन है और इसका पब्लिकेशन जो डेट है वो क्या है। जब आप IEEE का स्टाइल यूज करते हैं रेफरेंसेस में, तो उसमें ये चीजें जो है ये आ जाती हैं और आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है। सही है सर। ठीक है। दूसरा आपका जो टॉपिक है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, इसको अगर आप ब्रीफली बताना चाहें, कोई एक डायग्राम ऐसी जो आपने स्लाइड में डाली हो वो जरा ओपन करें। किसी ऐसी स्लाइड पे ले जाएं जहाँ डायग्राम है। जी सर। ये आपने डेफिनेशन के तौर पे चीजें तो बता दी हैं कि जो फिजिकल और वर्चुअल में किस तरीके से होगा।
जी सर। थोड़ा सा यानी कॉन्फ़िगरेशन और थोड़ा सा बेनिफिट्स, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसकी, यानी ये थोड़ा सा आंसर दे सकेंगे? सर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे कि राउटर और स्विचेज हैं वो एक ही पूल पे आ जाते हैं। राउटर पे जी सर। कॉन्फ़िगर करेंगे या क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगर करेंगे या दोनों पे करेंगे? सर क्लाइंट साइड पे तो करना ही पड़ेगा, मगर ये कि अगर ये एक पूल पे होते हैं स्विचेस और राउटर्स, तो वो जो है वो वीलैन कंसीडर किया जाता है और उसमें जो है वीलैन का आंसर शामिल हो जाता है। कि अगर एक कंप्यूटर जो है वो दो वीलैन का हिस्सा है तो इससे क्या? जी सर। सर इससे ये होगा कि वो दो जो वीलैन का हिस्सा है, तो एक वीलैन से भी कनेक्ट रहेगा और दूसरे वीलैन से भी कनेक्ट रहेगा। साथ स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप साथ अपनी रिपोर्ट दिखा दीजिए ताकि रिपोर्ट हम देख लें। जी सर। सर रिपोर्ट में से थोड़ी सी वो है, थोड़ा चेंजेस करना है उसमें। तो कब तक आप रिपोर्ट भेज देंगे मुझे, क्योंकि रिपोर्ट में सर मैं आज ही भेज दूंगा सर आपको। यहाँ यहीं पे देख लें हम रिपोर्ट ना। जी सर। क्या उसमें चेंजेस क्या करनी है, आपने अभी बना ली है या अभी थोड़ा सा उस पर वर्किंग करेंगे? सर थोड़ी सी थोड़ा सा काम रह गया था, वो मैं आज इसमें पुट कर दूंगा और आज ही आपको सेंड कर दूंगा। अभी ईमेल एड्रेस है उस पर सेंड कर दीजिएगा, और साथ साथ जी सर। वो जो हमने एलएमएस पे बनाया है ना उस पर भी अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन चेंजेस करने के बाद। जी सर। ईमेल कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईमेल का रिकॉर्ड है एलएमएस पे, फिर थोड़ा लॉगिन करना और डाउनलोड करके उनको फिर मैनेज करना होता है। ईमेल कर, जी सर। जी सर ईमेल कर दूंगा मैं सर। अभी आपके पास रिपोर्ट नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक दो चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अ, आप अपनी प्रेजेंटेशन ये शेयरिंग हटा दें, आप अपना अनशेयर कर लें, शेयरिंग खत्म कर दें आप। स्टॉप स्टॉप शेयरिंग कर दें अपने पास। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट से मैं एक दो सवाल, सॉरी एक दो चीज़ें करना चाह रहा था। देखें, जो असाइनमेंट 3 और क्विज 3 है वो एक अच्छा आप लोगों के पास वो है अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो अपना रिजल्ट जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सेशनल में ना। अभी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जब आप मुझे भेजेंगे ना तो मैं उसके नंबर यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो क्विज और जो असाइनमेंट्स है ना इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप क्विज 3 और असाइनमेंट 3 को अटेम्प्ट करें ना, तो क्विज 3 और असाइनमेंट 3 जो है ना उसको मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से इनेबल कर दिया है। तो जो क्विज 3 है और जो असाइनमेंट 3 है, इसके लिए मैंने आपको कल तक का दिन दे दिया है। विद 5 टोटल अटेम्प्ट्स में तमाम, यानी जो अभी अगर आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए तो 3 और कर सकेंगे। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है, तो आप जरूर इसको कल तक अटेम्प्ट करके फाइनलाइज कर लें, ताकि आपके ये जो मार्क्स है ना मैं फिर अपडेट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 7 के इसमें का जो है वो 8 10 है, तो अगर उनके यहाँ किसी एक में 10 आ जाते हैं तो मैं यहाँ किसी एक जगह पे उनके 10 यानी जो बेहतर नंबर है ना वो लगा दूंगा जब फाइनल मार्क्स लगा रहा हूँ उस वक्त। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम मार्क्स है क्विज और असाइनमेंट के वो आप अटेन कर सकेंगे। इसी तरीके से रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के मार्क्स है
वो भी अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है। मैंने मार्क्स आप लोगों के लगा दिए हैं, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। जब वो फाइनल हो जाएंगे तो वो भी आपको मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्विज और असाइनमेंट 3 इसलिए है कि मैंने आज जो आपका फाइनल एग्जाम बनाना है उसमें कुछ सवालात जो है ना वो इस क्विज और असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कर लें, और इसमें आप के लिए पहले ही मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ कि आप इनको किस तरीके से करेंगे। काइंडली ये ज़रूर कर लीजिए। ओके, इसके अलावा कोई आप लोगों का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी हनीफ, आपका कोई सवाल है? सर सिलेबस के रिलेटेड था कि अगर आप सिलेबस हमें एक दफ़ा बता दें कि कितना होगा, कहाँ कहाँ से आएंगे, ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी कर लें। साथ आप बताइए, आपका कोई सवाल है? सर सिलेबस से रिलेटेड ही था कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है काफी कुछ। ठीक हो गया। शेरोज, आपका कोई सवाल है? ओके मुनीब, आपका कोई सवाल है? अगर हम आपका कोर्स आउटलाइन देखें, ये कोर्स आउटलाइन थोड़ा पुराना है। आप लोगों का असल में जो कोर्स आउटलाइन नहीं, आप लोगों की कोर्स इंफॉर्मेशन शीट होता है, और वो कोर्स इंफॉर्मेशन शीट यहाँ पे है। इसमें अगर आप देखें तो ये चूंकि अगर आप देखें तो चैप्टर 1 है हमारे पास, चैप्टर 2 है किताब का, जिसमें कि एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है किताब का, और इसी तरीके से अगर आप जाएं तो टीसीपी है और नेटवर्क लेयर है। कुछ टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाए ऑब्वियसली, कुछ टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है ये असल में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। क्योंकि नेटवर्क लेयर, डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन, दो नेटवर्क का चूंकि बहुत ज्यादा पोर्शन था तो वो कवर नहीं हो सका, तो वो 2 हिस्सों में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आ गई, और एक वीक जो है ना वो हम, अगर आपको याद हो तो एक वीक की क्लास नहीं हो पाई, तो इसलिए उसके लिए रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो शेयर की गई थी, लेकिन उनसे सवाल नहीं आए ना, यानी वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो उसको रीड करें, चाहे तो ना करें। तो ये आपके पास जो है ना ये वर्जन 3 मौजूद है। ये मैं आपकी जो ये शीट जो है ये अगर आप चाहे तो आपका जो कोर्स पेज है उसमें अगर हम जाएं तो गूगल फोल्डर पे आपको आपके फोल्डर में, और भी कई फोल्डर हैं लेकिन आपका फोल्डर अलग है, अगर आप इस फोल्डर में जाएंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट। एक मिनट में इसमें वर्जन 3 अपलोड कर देता हूँ। वर्जन 3 में एक चेंज है छोटी सी, और वो चेंज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये जो किताब है इसका नया एडिशन आ गया है जो हम पढ़ रहे हैं। हम 6 और 7th एडिशन से पढ़ रहे थे, अब इसका 8th एडिशन आ गया है, और इसके साथ साथ इसका जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो भी अवेलेबल है।
तो इसकी भी एक लिंक जो है वो हमने नीचे डाल दिया। तो ये छोटी सी चेंज आई है। इस चेंज के साथ मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा। अभी ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपना आईडी चेंज करूँ तो ये मुझे अलाउ कर देगा, ताकि मैं इसमें ये आपके लिए अपडेट कर दूँ। ये डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना जरूरी है। स्टूडेंट फोल्डर्स में है। यहाँ ये V2 डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने हटा दिया है। अब मैं आपके लिए जो है वो V3 डॉक जो है ये डाल देता हूँ। अभी आपको जो है वो उसमें नजर आ जाएगा V3 डॉक्यूमेंट जो है। अब इसके बाद क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मेन सवाल है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो है वो क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से आपको आएंगे। तो पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि आपका जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है टोटल। और 50 मार्क्स जो है इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चंस। अभी ये टेंटेटिव है, मैं यहाँ टेंटेटिव लिख देता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम ऐप से ले लेंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर से ले लेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हम ट्रांसपोर्ट, और एक क्वेश्चन जो है वो हम नेटवर्क लेयर से ले लेंगे। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि ऐप लेयर से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर से हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे, और इसी तरीके से 2 क्वेश्चन जो है वो हम नेटवर्क लेयर से कर लेंगे। या इसको यूं भी कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन हम ट्रांसपोर्ट लेयर से कर लें और 3 क्वेश्चन जो है वो हम नेटवर्क लेयर से कर लें। ये ज्यादा अच्छा वो रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो अगर आप देखें तो जो क्विज 3 और असाइनमेंट 3 है उसके साथ इसका लिंक जो है वो आपको नजर आ रहा है कि जो है वो इस तरीके से ये आपस में लिंक हो गए। तो इस तरीके से अगर हम कर ले तो ज्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन लेयर से, एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट लेयर से, और 3 क्वेश्चन नेटवर्क लेयर से। तो आप लोगों का कोई सवाल है इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल जो अभी अपडेट करके आपको देनी है रिपोर्ट, वो एलएमएस पे भी अपलोड होगा। अब एलएमएस का तो वो आपका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, वो जो आपने दिया था, तो हम आपको ईमेल कर दें डायरेक्ट अपडेट करके। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही ऑप्शन है कि आप रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जो है ना ये ईमेल कर दें। सही सर। लेकिन ईमेल जब आप करेंगे ना बेटा, तो ईमेल जो है वो आपको जो एड्रेस यूज करेंगे ना वो हमदर्द.edu वाला करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना वो हमारे पास थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है, इस पे हमारे पास डॉक्यूमेंट रह सकता है। लेकिन जो दूसरे जो ईमेल एड्रेस है ना उन पे डॉक्यूमेंट जो है ना ज्यादा देर तक रहते नहीं है। सही है सर। इसलिए आप जो है ना वो इस ईमेल एड्रेस पे भेजें। सही है। सब एक फेवर चाहिए था सर, एक्नॉलेज कर देगा अगर आपको हम दे देंगे, और टाइम हम कब लाइक आज ही कर देंगे, तो बस एक्नॉलेज कर देगा ताकि हमें स्टोर हो जाएगा, आपको सही मिल जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि ईमेल बहुत ज्यादा आती है ना, इसलिए थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम ही होती है।
ओके, ये कह रहे हैं कि क्विज 3 और असाइनमेंट 3 का सोल्यूशन कर दीजिएगा। देखिए अभी जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, उसमें एक लिंक है, आप उस लिंक पे जाएं। एक मिनट, मैं उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ। ये आपका अच्छा सवाल है और बहुत टाइमली सवाल है, मुझे पसंद आया। खैर नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से ये क्विज बना है ना, ताकि आप बहुत आसानी से उसको फिर कर सकेंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होम एक नजर आ रहा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होम पे जब आप जाएंगे, मैं ये आपको लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, मेरे पास में कोई ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, एक मिनट रुके जरा। नहीं, वो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है, आप जरा जी सर, मैंने अनज्वाइन करके दोबारा मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो हो गया मसला। हाँ, वो शायद कुछ लोग तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, तो आपको इसमें आप नेटवर्क लेयर पे चले जाएंगे। अच्छा, नेटवर्क लेयर में आपको दो नजर आएंगे। इसमें आप ये जो चैप्टर 5 में ये दोनों पार्ट जो लिंक स्टेट एल्गोरिदम है और ये जो बेल फोर्ड बैंड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है, ये जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको देख लेते हैं ना। जब आप इस प्रॉब्लम में लेके जाएंगे तो आपको जो मैंने आपको नेटवर्क दिया ना, उससे मिलता जुलता एक नेटवर्क मिलेगा, थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट होगी इसमें। तो आप इसका सवाल पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि कंसिडर द 6 नोड नेटवर्क, और इसमें कास्ट दी हुई है, ठीक है। जब आप इसकी कॉस्ट देख लेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या है। फिर नीचे सवाल देखें इसका, यूजिंग डेक्स्टर एल्गोरिथम, डेक्स्टर्स या इसको जिस तरीके से भी आप पढ़ें, find the least cost path from source u to all other destination and find the question and answer, ठीक है। पहले u को फोकस करें और u का व्यू बना लें, और उसके बाद what is the shortest distance to node x and what node is its predecessor, इससे पहले वाली नोड क्या है, ठीक है। और उसने कहा कि आंसर आप इस तरीके से दें कि पहले आप इससे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर प्रीडिसेसर नोड लिखिए। तो अब आप देखिए कि u के बाद x कहाँ है, ठीक है। देखिए ये u है, u के बाद ये x है। पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो देख लीजिए, पहले u से v तक और v से x तक जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा डिस्टेंस। इसी तरीके u से w पे जाएंगे 8 और 9 10, यहाँ से भी अगर आएंगे तो भी ये बढ़ जाएगा। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बन रहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, नीचे अगर आप चले जाएंगे आंसर आप लिखेंगे 5। 5 इसकी कॉस्ट है, और क्योंकि उसने कहा कि डॉट लगा के आप प्रीडिसेसर नोड लिखेंगे, प्रीडिसेसर नोड यू ही है, क्योंकि इससे पहले यू ही आ रहा है ना, यू बजाते खुद मौजूद है। अब इसका आंसर आप चेक कर लीजिए। ओके, सर कॉमा लगाएंगे, डॉट नहीं लगाएंगे। अच्छा, वो मुझे थोड़ा नजर नहीं आ रहा सही ना। ओके, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ थोड़ा जरा दिखा दें जरा। ओके, कामा लगा दिया, चलो कामा लगा दिया। अब चेक करेंगे तो वो कह रहा है दैट इज करेक्ट। अब दूसरे क्वेश्चन पे ले जाते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू नोड v एंड व्हाट नोड इज इट्स प्रीडिसेसर। अब v तक जाना है हमने, u से v तक है। u से v तक जाने के लिए v करीब ही है उसके हैं, तो u से v जाने के लिए एक तो ये 9 का पाथ है, एक ये देख लीजिए इधर से, एक इस तरफ से आ जाइए। इसी तरीके से आप कहीं से भी घूम घाम के जाएं,
तो आपको यही पाथ इसका नजदीक तरीन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 9 और कामा यू लिखेंगे। तो ट्राई कर लेते इसे और आप चेक कर लीजिए इसे, और वो कह रहा है कि ये भी ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू नोट W एंड व्हाट नोट द W। अब ढूंढने जरा कहाँ है यहाँ पे। ओके, W ये रहा। W तक जाने का एक रास्ता ये 8 है, एक रास्ता ये 9 और 4 11 हो जाएगा, ये भी फीजेबल नहीं है। एक रास्ता ये 5 और 2 7, ये थोड़ा करीब लग रहा है। बाकी सारे जो है वो थोड़े जरा कैलकुलेशन में बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पास से जाएं, x से होके जाएं, तो 5 और 6 7 7 हो गया, और W से पहले x आ रहा है, ठीक है, तो 7 कामा x लिखेंगे। तो यहाँ आपने 7 लिखा और कामा x लिख दिया और चेक कर लिया आंसर, और ये आंसर भी ठीक हो गया। इसी तरीके से आप कुछ और जो है वो प्रॉब्लम्स चेक करें और उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा कोशिश करें सॉल्व करने की। तो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा बेहतर अपने आप को फील करेंगे। इसी तरीके से बेलमैन-फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी देखें, अगर ये डायग्राम इसी से मिलती जुलती होगी, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना थोड़ी डिफरेंट होगी, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें सवाल जो है वो कहता है कि व्हेन द एल्गोरिथम कन्वर्जेस, व्हाट आर द डिस्टेंस वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर v टू ऑल राउट्स, ठीक है। और u v w x y की तरह लिखना है, ये इस तरह लिखना है आपने, u v w x y, और v से लिखना है आपने। तो जो मैं आपको चीज बताई थी उसमें फिर आप इसमें लिखिए कि v से जो है वो क्या इनका वो होगा डिस्टेंस। तो u तक तो 6 ही होगा, तो अगर हम यहाँ पे पहले 6 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद v का अपना 0 होगा, अगर हम 0 लिख दें, और v के बाद फिर w है, w अगर आप देखें तो 1 है, 1 लिख लें यहाँ पे। और कन्वर्ज के बाद होगा ना, आपको ये थोड़ा सा रफ में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद v के बाद जो है वो 2 पाथ आ रहे हैं ना, एक w से भी होके आ रहा है, ये भी 4 बन रहे हैं, डायरेक्ट भी 4 आ रहा है, तो अब हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाला पाथ ले लें तो ये 4 बन गया, और 4 और 5 ऐड कर लें तो ये 9 बन गया। तो x और y का जो है वो 4 और 9 लिखना होगा, तो यहाँ 4 और 9 लिख दें और अपना आंसर चेक कर लें, और वो कह रहा है सही है ये। दूसरा सवाल आ गया, दूसरा सवाल कह रहा है कि व्हाट आर द इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर फॉर राउटर W, और इस तरह का आंसर लिखिए, और जहाँ इन्फिनिटी आएगा वहाँ x लिख दीजिए। अब इसको भी करना पड़ेगा। W देखें कहाँ है W ये रहा। अब W जब अपना राउंड बनाएगा तो इसको v और x का पता है, बाकी इसको u और y का तो पता नहीं है, तो u और y की जगह x लिख देंगे। तो u से स्टार्ट करें, पहले x लिखेंगे और कामा डाल के फिर u का लिखेंगे, v का लिखेंगे, v इससे 1 डिस्टेंस है तो 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर x लिखेंगे, तो 1 3 और x, 1 3 और x। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सॉरी, एक लिखा नहीं है ना, वो उसका अपना भी तो लिखना था, u v w का है ना, u v और w 0 लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि u का तो खुद से w होगा ना। अब जब चेक करेंगे तो आंसर सही आएगा, फिर वो तीसरे पे ले जाएगा। अब वो कहेगा कि द फ्रेज गुड न्यूज ट्रेवल फास्ट इज योर एप्लीकेबल टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग व्हेन लिंक कॉस्ट डिक्रीजेस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन अकर व्हेन कॉस्ट इंक्रीजेस। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा। जब आप हिंट में जाएंगे तो वो कहेगा कि आप सेक्शन 5.2.2 में जाके उस टेक्स्ट को देखें और फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लिख दें और उसके बाद चेक कर लें। तो
तो इस तरीके से आप जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर ले इस वेबसाइट पे, और उसके बाद आप जो है वो वीडियो भी एक दफा देख लें जो हमने वर्कआउट किया आपके लिए, और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और कल कोशिश कीजिएगा कि आज या कल में लाजमी जो है वो कोई तो असाइनमेंट कर ले, तीसरे नंबर वाला। मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा रहेगा। और कोई चीज है तो बताएं। सर ये जो न्यू एडिशन है 8th एडिशन, ये क्या अवेलेबल है आपके पास? एडिशन मैंने डाउनलोड कर लिया था, आप लोगों को चाहिए? एक तो मिनट, मैंने आप जी सर शेयर कॉपी कर भी दें, कर दिया डाउनलोड नहीं हो रहा ये एडिशन। रुपए ना, एक मिनट, आपके उसमें शायद मैंने कॉपी कर दिया है। मुझे याद पड़ता है मैंने कॉपी कर दिया है, लेकिन अभी देख लेते हैं। अच्छा 7 है अभी, 8 नहीं किया, एक मिनट 8 भी कर देता हूँ। बस आप थोड़ी देर में यहाँ से अपने फोल्डर से ले लीजिएगा, ये 8 मैंने कॉपी कर दिया है इसमें। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था, पता नहीं क्विज में था या असाइनमेंट में, जिसमें ठीक। आपने शॉर्टेड डिस्टेंस कहा था कि आपने नोट करना है, तो वो यू टू यू है, कहीं वो गलती से टाइप हो गया या वाकई यू टू यू ही फाइंड करना है हमने? क्या दोबारा बोले? तो कह रहा हूँ सर एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में या क्विज में, जिसमें शॉर्टेड डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था, तो उसमें मेंशन है कि यू टू यू, यानी कि हाँ यूनिफॉर्म टू नहीं नहीं, यूनिफॉर्म, वो तो वो क्या टाइपिंग आपने टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक हो गया सर? हाँ, वो सवाल है। जी ठीक सर सही हो गया वो, है, चूंकि उसका अगर आंसर कोई तो मैंने दे दिया। अगर कोई ऐसा जो आप कोई और सवाल लास्ट में जो पूछना चाह रहे हो। ओके, आपको मैं एक छोटी सी रीडिंग जो है वो भेज दूंगा, छोटी सी टास्क, लेकिन ये टास्क जो होगी ना ये मार्केबल नहीं होगी, यानी ये ऑप्शनल होगी। अगर आपको टाइम मिले तो रीड कर लीजिएगा, अगर टाइम ना मिले तो फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी रीडिंग असाइनमेंट दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।